what we've seen historically is that US ने a bulk of their vetoes they've used to protect Israel. In fact, अगर पूरे vetoes हम देखें history में since the inception 1945 में of the UN Security Council, 27% have been used by the US to protect Israel. यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनका काफ़ी एक अहम किरदार होता है यूएन की पूरी ब्यूरोक्रेसी के हेड होते हैं, यूएन एजेंसी के एक हेड होते हैं और उनका आई थिंक जैसे यूएन के डिफरेंट एरियाज हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में इज अ मेजर एरिया दैट द यूएन स्पेशली द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वर्क्स इन, तो उसमें ऑफ कोर्स द सेक्रेटरी जनरल हैज़ अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. आपने गुज़िश्ता दिनों में देखा होगा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने आर्टिकल 99 इन्वोक किया था. दिस इज़ वेरी रेयर. द यूएन सेक्रेटरी जनरल डज नॉट इन्वोक this particular article often, and बहुत से conflicts होते हैं दुनिया में, but very rarely is this particular article invoked. Article 99 के तहत brought the Palestine situation, the Israeli attack and assault on Gaza to the attention of the UN Security Council. Now of course the UN Security Council had already been discussing this, votes भी इस पे हो चुके थे, लेकिन ये जो UN Secretary General की तरफ से है, तो this has the backing essentially of the United Nations that something needs to be done, a ceasefire has to be called in, and that's why I think it was very significant. UN Security Council जो है is probably the most powerful, obviously, a part of the UN, if you will. It is the only part of the UN that जो binding resolutions pass कर सकता है, legally binding होती हैं states पे. Primary किरदार है वो है to maintain international peace and security, and that is the entire ambit of what the UN Security Council looks at. लेकिन इसको भी interpret काफ़ी broad किया हुआ है. For example, refugee situations भी जो होती हैं वो भी international peace and security की ज़ुमरे में आ जाती हैं as they interpret it. And of course, as we all know, 5 permanent members हैं और 10 जो हैं वो elected होते हैं on a rotational basis. जो permanent members हैं इनके पास veto power है. So these are these larger countries. You have UK, France, US, रशिया एंड चाइना. इन ममालिक के पास वीटो पावर्स होती हैं. किसी भी रेजोल्यूशन चाहे बाकी सब सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ने अप्रूव कर ली हो, दे कैन वीटो इट. एंड दिस इज व्हाट वी सॉ विद रिगार्ड्स टू ये आर्टिकल 99 की जो इन्वोकेशन थी. उसके बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पेश हुई थी वो वाज 13 मेंबर्स वोटेड फॉर इट टू इम्पोज इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज़फायर. दिस वाज देन वीटोड बाय द यूएस एंड द यूके abstained. So we had all 15 members there, जिसमें the vast majority wanted it to be passed, but the US vetoed it. And what we've seen historically is that US ने जो a bulk of their vetoes they've used to protect Israel. In fact, अगर पूरे vetoes हम देखें history में since the inception 1945 में of the UN Security Council, 27% have been used by the US to protect Israel. सिचुएशंस ऐसी पास में भी आई हैं 1950s में, खासकर जब ग्रिडलॉक था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में. यूएसएसआर उस वक्त प्रीडिसेसर टू रशिया डिडंट अलाउ फॉर रेजोल्यूशंस टू बी पास्ड अगेंस्ट से द नॉर्थ कोरियन इन्वेजन ऑफ इट्स सदर्न नेबर. तो इस सिचुएशन में यूएस ने जो बाकी मेंबरान थे यूएन जनरल असेंबली के, उनको कन्विंस किया कि वी शुड पास अ रेजोल्यूशन that when the UN Security Council fails to maintain international peace and security, its primary role, उस सिचुएशन में फिर UN General Assembly जो है वो ये किरदार प्ले कर सकती है. तो इससे रेजोल्यूशन 377A5 पास हुई, जिसे हम यूनाइटिंग फॉर पीस भी कहते हैं, द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन. And this essentially said that whenever the UN Security Council fails to maintain its primary role of maintaining international peace and security, then the General Assembly can act and even recommend the use of force. अब ये बड़ी important चीज़ है. Use of force जो होती है any use of force is technically a violation of the UN Charter. Article 2.4 है जिसमें states cannot use force against the political independence or territorial integrity of another country. But there are some exceptions to this. One exception is, for example, self-defense. एक मुल्क ने आपको अटैक किया, तो in self-defense you can attack that country and use force there. The second is कि आपके पास UN Security Council की authorization हो. तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिबिया में देखा, इराक में देखा, बेशुमार और मुल्कों में देखे जहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन एक आती है चैप्टर 7 के तहत, और चैप्टर 7 फिर बाइंडिंग होती है. इट अलाउज फॉर इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस या मिलिट्री फोर्स. तो इस किस्म की जब रेजोल्यूशन आ जाती है, देन यू कैन आल्सो यूज फोर्स. एनी अदर यूज ऑफ फोर्स
would be a violation of international law, सिवाय एक दो एक्सेप्शंस के, लाइक कंसेंट या इस किस्म के। तो उसको ऑब्विएट करने के लिए, उसको परमिट करने के लिए इस यूज ऑफ फोर्स को आप यूएन जनरल असेंबली की ये यूनाइटिंग फॉर पीस का मैकेनिज्म इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये है कि यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस आर रिकमेंडेटरी, दे आर नॉट बाइंडिंग लाइक द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस सिलसिले में अभी तक एज सच there hasn't been a major use of uniting for peace to use force. हमने देखा था 1951 में चाइनीज सपोर्ट जब नॉर्थ कोरिया को मिली थी, तो उसमें there was a resolution that was passed in the United Nations General Assembly which used the language of uniting for peace, और essentially उन्होंने authorize किया था कि any form of assistance to the UN to secure the situation वो permit की जाएगी। लेकिन वो अभी तक ऐसा यूज ऑफ फोर्स नहीं हुआ उसके तहत। दूसरी जो इसमें अहम चीज़ है, यूएन जनरल असेंबली यूनाइटिंग फॉर पीस की जो रेजोल्यूशन है उसके तहत इमरजेंसी सेशंस जो हैं वो बुलाए जा सकते हैं। और वीव सीन के यहाँ गाजा की सिचुएशन में भी कतर ने एक इमरजेंसी सेशन बुलाया था जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी भी ये जो लेटेस्ट रेजोल्यूशन आपने सुनी होगी जो पास हुई थी वो अबाउट 153 कंट्रीज out of 186 voting in favor of an immediate humanitarian ceasefire. उसमें से 10 मुल्क जो थे जिसमें Israel, US, Austria were included, they voted against it, and we only had 23 abstention. So this is primarily what the role is in this situation when we look at the UN Security Council, we look at the UN General Assembly, and especially Uniting for Peace की जो General Assembly resolution है। गाजा की सिचुएशन में जो एक अहम चीज़ है वो इज़ द नेचर ऑफ द स्टेटस ऑफ गाजा, एंड दैट इज़ गाजा एंड द रेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन इज़ करंटली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो होती है वो यूएन चार्टर की अगर आप देखें तो अगेन एक वायलेशन है, बिकॉज इसराइल ने 1967 में अपने जो उनके बॉर्डर्स थे जो रिकग्नाइज थे उनसे हट के आगे बढ़ के दे टुक ओवर पैलेस्टीनियन टेरिटरी, जो पूरा जो पैलेस्टाइन अब आप देखते हैं खासकर वेस्ट बैंक और गाजा को मिला के, तो दैट इज़ under occupation by Israel। और उस सिचुएशन में an occupation can never be a permanent situation, हमेशा वो टेम्पररी होती है। और आप ऑक्यूपाइड टेरिटरी को अपने मुल्क में जम नहीं कर सकते, यू कांट इंक्लूड इट एज पार्ट ऑफ योर ओन टेरिटरी। अगर आप ये करेंगे, जैसे इंडिया जो है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर को इंक्लूड कर रहे हैं, इसको एनेक्सेशन कहते हैं। और इसराइल भी जो ये सेटलमेंट्स क्रिएट कर रहा है, ये सब जो हैं दीज आर एनेक्सेशंस एसेंशियली ऑल थ्रू आउट द वेस्ट बैंक। गाजा में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन फिर 2005 में उन्होंने ये विड्रॉ कर ली थी अपनी जो सेटलमेंट्स थी वहाँ पे। बट दीज आर ऑल एनेक्सेशंस एंड दीज आर कम्प्लीटली इलीगल। बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस भी हैं इस पे, जो एक दो यूएस ने अलाउ की थी, वो क्लियरली स्टेट दैट दीज सेटलमेंट्स आर अनलॉफुल एंड नीड टू बी एंडेड। बट अभी अगर आप देखें सेटलमेंट्स में कोई 7 लाख Israelis are now living in settlements in the West Bank. So this is a huge increase in settlements that have taken place over the last few years. इसराइल का आपने ये भी सुना होगा कि इसराइल जो है वो it's acting in self defense against Hamas which conducted these October 7th attacks. लेकिन इसमें आपने ये देखना होगा कि सेल्फ डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एसेंशियली आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के तहत आता है, और वो सिर्फ उस वक्त होता है व्हेन अ स्टेट कंडक्ट्स एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट अनदर स्टेट। अब क्योंकि फ़लस्तीन जो है, गाजा या वेस्ट बैंक जो है इज अंडर ऑक्यूपेशन, तो वो जो इख्तियार होता है, वो जो राइट होता है आपके पास सेल्फ डिफेंस का, वो इसराइल के पास नहीं है, बिकॉज द ओरिजिनल सिन जिसे हम कह सकते हैं वो ऑक्यूपेशन है। 1967 के बाद जो उन्होंने वो पूरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर ली थी। तो इस सिचुएशन में इसराइल डज नॉट हैव अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। आई मीन इट मे हैव अ राइट टू डिफेंड इट्स सिटीजंस एंड थिंग्स लाइक दैट, जिसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। लेकिन जो यूएन चार्टर के तहत जो आर्टिकल 51 का राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है वो इसराइल के पास नहीं है। इंटरेस्टिंगली जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके पास राइट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज दे आर एन ऑक्यूपाइड पीपल। इसमें बेशुमार यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस हैं जहाँ पे ये राइट जो है, राइट ऑफ रेजिस्टेंस, और राइट ऑफ रेजिस्टेंस सिर्फ ये नहीं कि आप मार्चेस में निकल आएँ या आप पीसफुल रेजिस्टेंस करें, बल्कि इवन आर्म्ड रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड राइट ऑफ रेजिस्टेंस एंड परमिटेड। और ये यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस में है, और ये भी कि यूएन के स्पेशल रैपोर्टोर रिचर्ड फॉल्क जो थे, जिन्होंने जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज पे ह्यूमन राइट्स के लिए स्पेशल रैपोर्टोर थे, उन्होंने भी ये कहा कि बिकॉज ऑफ इजराइल्स कंटिन्यूड एंड रिपीटेड वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन हैव अ राइट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस ऑक्यूपाइंग पावर। सो एवरी टाइम यू सी Palestinians, whether they're firing, guns or they're attacking military targets, as long as आपकी target जो है वो legitimate हो, जैसे military target हो, civilians ना हो, उसमें that act of resistance is completely legitimate under international law.
जो यूएन का अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है वही इज बेस्ड ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब एक्शन लेते हैं. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैन रेफर मैटर्स टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इट कैन रेफर मैटर्स टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इस किस्म की बेशुमार चीज़ें जो हैं दोज कैन बी इंक्लूडेड फॉर अकाउंटेबिलिटी. लेकिन जो सबसे अहम इसमें नुकता होता है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन. और क्योंकि पैलेस्टाइन ने अपनी जुरिस्डिक्शन दी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, और जब दे रहे थे तो इवन हमास वाज ऑन बोर्ड, knowing that हमास के अपने लोग जो थे बिकॉज वो फाइटिंग में होते हैं, they could be subject to war crimes trials, they still gave permission and they signed up to the ICC. और इसमें आपके पास पिछले 10 साल के अंदर ICC से भी ऑथराइजेशन आ गई कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो सकते हैं ऑन पैलेस्टीनियन टेरिटरी. सो एनी वायलेशंस ऑफ द लॉज ऑफ वॉर क्राइम्स के जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के इन्वेस्टिगेशंस, जेनोसाइड के, इस किस्म की जो भी चीज़ें होती हैं, दोज कैन बी नाउ कवर्ड बाय द ICC एंड इन्वेस्टिगेशंस कुड स्टार्ट. पिछले 3 साल से जो पिछली प्रोसिक्यूटर थी ICC की बेंसूरा, उन्होंने पूरे एक an expansive investigation was started. However, we've seen that somewhat not really take off under the current prosecutor जो करीम खान है. और इसका कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, बिकॉज हमने जो यूक्रेन वाली सिचुएशन है उसमें विद इन अ ईयर अरेस्ट वारंट्स निकल आए थे फॉर पुतिन. लेकिन यहाँ पे 3 साल हो गए और अभी तक किसी किस्म की भी कोई अरेस्ट वारंट्स नहीं है. तो लगता है इससे कि ICC इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड राइट नाउ. कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं प्रोसिक्यूटर से, करीम खान से, बट दे आर नॉट रियली वेरी इंकरेजिंग. उनके he's visited Israel. Israel is not even a member of the ICC. He's spoken to victims there, but really hasn't spoken to Palestinian victims. Palestine is a member of the ICC. तो ये कुछ political issues आ रहे हैं इसमें जो concerning है. तो again, अगर system चले तो there's a very strong mechanism for individual accountability. Netanyahu, Minister of Defense जो उनका Gantz है, और बाकी जो उनके military leadership है, individual soldiers could be charged for war crimes, crimes against humanity, genocide potentially by the ICC. लेकिन that depends of course on much of the politics as well. Thank you for watching the full video. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.